Good morning, everybody. Now, before I start today's class, that is based on BACPR theory and hybridization. In last class, we have done up to 4, that is sum of lone pair electron and bond pair electron is 1, 2, 3, 4. Then what will be the shape and what will be the hybridization and what will be the impact of presence of lone pair on the shape of the molecules. Before I start, I would like to tell you all my viewers something regarding the teaching of chemistry. Normally it is said that chemistry is a subject full of exceptions. Few people used to say that it is a science of exceptions, but it is not at all. It is not at all. Exception exists everywhere. Nothing is real. Everything is ideal. If I will say in that way, then you will find exception. But if I will say that everything is real, nothing is ideal, then you will find there is no matter of serious exception in chemistry as well. Second thing, sometimes you feel this subject is hard. I don't know how you say hard and soft. Is it a metal? Subjects are metal? It is not a metal. So there is no question of hard and soft. In chemistry, no topic is harder, no topic is softer. This is just stupid to say that this topic is harder. Why you feel then, and why the students or some people also, sometimes the teachers also used to say this topic is very hard. It is very difficult to handle, to teach. Let me tell you, I am not teaching you at all. I am making you aware with different phenomena, different experimental evidences, observations that comes across while studying chemistry. So remove all these things from your mind. That this subject, this topic, that topic is hard. There is no such as. But you feel this is also the truth. Why is it so? Because you don't have the concept in the subject. You are missing the basics. And thus you feel, oh, it is very difficult to understand. If you feel difficult to understand, somewhere your teacher, means myself, is not at all able to convince you. It is my failure on my part. Sometimes something is lacking from your sides also, because if you are going through hybridization and Weisfer theory, if you don't have the knowledge of valency, valence electron, sometimes geometrical issues related to the mathematics, and you are not able to visualize the things the way it is, then you feel the topic, the chapter, the subject is harder. So remove all these things from your mind and cooperate me. Watch this video continuously. I have just started, and I feel and I think I will find full cooperation from my viewers. So let us start the second part of Weisfer theory and hybridization. एक और बात कहते चलो, कुछ लोगों का ये मानना है कि इंग्लिश बोलने से वो सीबीएसई मीडियम हो जाता है और हिंदी बोलने से जैक मीडियम हो जाता है या स्टेट का मीडियम। ये मीडियम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। केमिस्ट्री हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत ऐसे बुक्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में लिखी गई हैं, लेकिन जब हम बाइलैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को जब हम यूज़ करते हैं, राइटिंग में मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, लेकिन बोलने क्रम में, समझाने के क्रम में ये दुनिया मानती है, सभी साइंटिस्ट मानते हैं, जो मदर टंग है, जो आपका अपना लैंग्वेज है, उसमें अगर किसी चीज़ को समझाया जाए तो आप ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हो। इसमें कहीं बोर्ड की इशू नहीं होती है और इसमें कहीं ये नहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए हिंदी मीडियम स्कूल वाले को कि हम हिंदी में हैं तो हमको कम नॉलेज है, और इंग्लिश मीडियम वाले को ये सुपीरियरिटी नहीं होना चाहिए, जैसा कि फील करते हैं बहुत सारे जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें जब हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते तो हम बेटर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नेवरदलेस
ये टीचर्स के कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, उसके क्वालिफिकेशन, उसका जो एजुकेशन हुआ वो किस मीडियम से होता है, वो किस मीडियम से आपको ज़्यादा बेटर पढ़ा सकता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। थ्रू आउट जो मेरा एजुकेशन रहा है वो इंग्लिश मीडियम से रहा है, स्वाभाविक है वहाँ हम ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले कमज़ोर टीचर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस सीखना है, समझना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो with these words I would like to continue my topic, the second part, that is Westphal theory and hybridization. So what we have discussed, what we are looking for, we are looking for lone pair electron plus bond pair electrons. We need to find this lone pair electron and bond pair electron. We are searching all these things, and if the value is 5, if the value is 5, then what will be the shape of the molecule that we have discussed. If it is 5, what will be the possible shape? Now let me explain one again. Keep 5, we need to place 5 things. We need to place 5 things in such a way that they should be placed at maximum distance with respect to the central atom in order to minimize the things. So in what way we can do it? I have prepared some model for you. So let us see how 5 things can be placed at maximum distance, and look at the model. Yesterday I was doing with the pen. Today I have brought something for you which helps us to understand the shape. Now see. Okay. Now see. 5 things are there. I have to place these 5 atoms around the central atom. How it could be? Let us see. I have placed the first atom. This is the single bond. Now second one at 120, and the third one at 120. This is a planar molecule. Don't mind if some deviation occurs, you need to understand. I am not 100% accurate by placing the things. हो सकता है कि ये 3 एंगल्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो, आपको ये एज्यूम कर लीजिए कि 20, 120 और 120। बाकी जो 2 बच गए, एक ऊपर परपेंडिकुलर और एक क्या नीचे। अब आप इसको विजुलाइज कीजिए। ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम के अलोंग हमने 5 एटम्स को प्लेस किया है। मैथमेटिक्स का नॉलेज कहता है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए प्लेन में, चौथे को ऊपर और 5वें को नीचे। इस तरह से जो शेप हमने ड्रॉ किया, ये 3 डायमेंशनल फिगर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए ये कैसा फिगर है, 3 डायमेंशनल। इसको अगर हम पलट भी दें, इट रिमेन्स द सेम, isn't it? Now what is this angle? 120. What about this angle? 90. And what about this angle? This is 180. So this shape is known as, you can easily say with the knowledge of mathematics, this is triangular, one pyramid above and another pyramid is below. You can add all these things, you will get the whole structure by adding the different molecules, perpendicular and then downward. This shape is known as ट्राइगोनल। 2 पिरामिड बन रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इस शेप का नाम क्या रखेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रखेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ प्लेन में एक पिरामिड कैसे बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड नहीं। तो इस तरह से ये हो गया। बेस कैसा है? ट्रायंगुलर, उस पर 2 पिरामिड नहीं, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। द शेप विल बी TBP। शॉर्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं, द शेप विल बी
TBP, this is the central atom, and now we are placing what? 3 things, and one is perpendicular to it, one is below. Let it be A, it is B, it is B, it is B, it is B, and it is B. Now I am adding the 3 things which is on the plane. जो प्लेन में है उसको हमने ऐड कर दिया, जबकि पूरा स्ट्रक्चर के लिए आपको इससे और इससे जोड़ना होगा, नीचे वाले को भी इससे और इससे जोड़ना होगा। तो इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे, नहीं यहाँ भी जोड़ेंगे, और इसको यहाँ भी जोड़ेंगे, फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। तो बिल्कुल ये जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बना, इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? TB क्या P। अब आइए, किसी मॉलिक्यूल्स के पास अगर ये शेप है तो पहला प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये सभी 5 जो बॉन्ड हैं आइडेंटिकल होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए, ये जो प्लेन में आप 3 देख रहे हैं और एक ऊपर और एक क्या नीचे, इसको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। 2 एक्सियल बॉन्ड हो गया, और ये 3 क्या हो गया? इक्वेटोरियल। ये 3 कैसे हैं? इक्वेटोरियल। तो 3 ए एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2 एक्सियल हुआ और 3 इक्वेटोरियल हो गया। और आपको ये दिख रहा है, देखिए 3 इक्वेटोरियल और 2 क्या हो गया? एक्सियल। जो एक्सिस पर है उसका रिपल्सन कितने से होगा? 1, 2 और 3। स्वाभाविक है ए बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा फील कर रहा है, और नीचे वाला भी रिपल्सन ज़्यादा फील कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगा वो लॉन्गर और वीकर। जब लॉन्गर होगा तो आसानी से क्या होगा? टूट जाएगा, दूरी पर है तो लॉन्गर और क्या हो जाएगा? वीकर। जबकि जो एक्सियल है ये शॉर्टर और क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, छोटा होगा और स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि PCl5 इसका एक एग्जाम्पल होगा जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब भी 5 चीज़ों को मैक्सिमम दूरी पर रखेंगे और हमारा जो मॉलिक्यूल्स का टाइप होगा वो किस तरह का होगा? तो AB5 इस तरह के जब मॉलिक्यूल्स होंगे, जब उसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कितना होगा? 5, तो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। लेकिन हम पहले ही कहें कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर मॉलिक्यूल्स के शेप को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, डिस्टॉर्शन पैदा करेगा। कैसे? अब उसको समझते हैं। आइए, मान लीजिए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 हो जाए, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 1, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या A हो जाए 4। अब इन दोनों का सम अभी भी क्या है? 5। इसमें एक हम क्या रख दिए? लोन पेयर। अब हमको पहला प्रश्न ही पूछा जाएगा, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि वेयर वी शुड प्लेस द लोन पेयर। इसमें 2 सेट्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। तो सर हम लोन पेयर को कहाँ रखें? तो लोन पेयर को पहले ही बताएं कि वो ज़्यादा रिपल्सन फील करता है, यूनिसेंट्रिक है। तो लोन पेयर को भूल करके भी ऊपर या नीचे नहीं रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखेंगे, नहीं तो उसका रिपल्सन और भी ज़्यादा होगा। कहाँ रखना चाहिए? इक्वेटोरियल पर। कहाँ रखना चाहिए? तो इस तीनों पर कहीं रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ रख दिए, जैसे यहाँ रख दिए, अब शेप देखिए क्या बन गया। इस शेप को आपने कहीं देखा है? पार्क में देखा होगा, हाँ, सी सॉ। और देखो ना, ये ऐसे इधर एक इधर पुल नहीं है, और इधर एक लड़का इधर बैठ गया, एक लड़का इधर बैठ गया, और दोनों झूल रहा है पार्क में नहीं। सो दिस शेप इज नोन एज सी सॉ। इस शेप कैसा हो जाएगा? तो इस शेप में, स्ट्रक्चर में क्या अंतर हो जाएगा बोलिए? हम ए को यहाँ रखे हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा ही रखते हैं, और इसमें भूल करके भी ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? ऊपर या नीचे लोन पेयर को नहीं रखेंगे। तो हमने लोन पेयर को यहाँ रख दिया, तो ये लोन पेयर हो गया। अब जो ये शेप बना, इस शेप का क्या नाम हो गया बोलिए? क्या नाम हो जाएगा? सी सॉ, जो आप पार्क में देखते हैं, जो पार्क में आपको देखने को मिलता है। तो क्या ये रखना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना होगा, खुद ब खुद शेप आ जाएगा, स्ट्रक्चर से ही ड्रॉ हो जाएगा। मान लीजिए लोन पेयर की संख्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ये 3 हो गया। अभी भी सम क्या है? 5।
तो हमको 5 चीज़ों को अभी भी मैक्सिमम दूरी पर रखना है नहीं, तो अभी भी हमको ऊपर और नीचे नहीं रखना है। कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो एक हम यहाँ लोन पेयर रख दिए, और जैसे ही एक लोन पेयर यहाँ रखें, ये शेप कैसा हो गया? देखिए इंग्लिश का कौन सा लेटर है? टी शेप। तो मॉलिक्यूल्स कैसा हो जाएगा इस केस में? टी शेप्ड हो जाएगा, टी शेप्ड हो जाएगा। इस केस में कैसा हो गया? शीशा। इस केस में कैसा हो गया? टी शेप्ड हो गया। ना अब है बारी कि 3 हो जाए, लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाए, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ये 2 हो जाए। अभी भी सम 5 है, इसको हटा देते हैं। तीसरा जो इक्वेटोरियल है, नाउ द शेप विल बी, नाउ द शेप विल बी लीनियर, नाउ द शेप विल बी लीनियर। मॉलिक्यूल बिल्कुल लीनियर हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, और आप देखेंगे कि बीच में ए होगा, ऊपर बी, यहाँ भी बी, और तीनों जगह क्या कर देंगे हम? लोन पेयर कर लेंगे। एक शेप हम नहीं ड्रॉ किए, आप कर लोगे, टी शेप। ऑलराइट, कितना आसान है, और आप कितने आसानी से इसको विजुलाइज कर रहे हो कि शेप क्या होगा। कहीं कोई शेप रटना नहीं है। स्ट्रक्चर एक बार जान गए, आप उसको लोन पेयर कहाँ रखना है ये जान जाइए, क्यों रखना है ये जान जाइए, और फिर आप शेप को विजुलाइज करते खुद से कर सकते हो। अब हम जानना चाहेंगे कि इन सभी केसेस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सभी केसेस में? 5 चीज़ों के लिए हमको 5 ऑर्बिटल चाहिए नहीं, एक एस ले लेते हैं, कल बताए थे एक एस ले सकते हैं। पी मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 3। तो P3 कितना हो गया टोटल? 4। अभी भी हमको एक ऑर्बिटल की जरूरत है, तो नेक्स्ट क्या ले लेंगे? D। What will be the hybridization? In all cases, the hybridization will be sp3. In all cases, hybridization will be sp3. So easily you can deduce the shape, and you will able to find out the hybridization of the molecule.